Yeah. Good. Yes, welcome to all of you. Sarang, welcome to you as well. Hearty welcome on behalf of देवरुख स्पिरिचुअल प्रोग्रेस प्राइवेट लिमिटेड। आप सब लोगों का DSPPL की तरफ से सोशल इकोनॉमिक फोरम पे स्वागत है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, as all of you know, on every new moon and full moon, we come out with a different lecture, different topic, which is related to our day-to-day life. Sarang, as regards DSPPL is concerned, DSPPL का फिलॉसफी है स्पिरिचुअलिटी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। अब जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज व्हाई टू लिव, व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल में, कॉलेजेस में हमें सिखाया जाता है, या जॉब में भी जो मेंटर होता है, कलीग्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, वो हमें सिखाते हैं कि कैसे जिया जाए। पर सवाल यह है कि क्यों जिया जाए। दैट फाइंडिंग पर्पस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, and the answer probably DSPPL is finding through all these sessions is related to this important question. तो सारे पार्टिसिपेंट्स का मैं आज के ये सेशन में स्वागत करता हूं। I welcome all the participants for this today's session which we are going to conduct. और Sarang Gosavi, I am welcoming him for this particular forum. I will make a small introduction of Sarang, although जब मैं कह रहा हूं कि स्मॉल इंट्रोडक्शन, he has been working extensively for last 20 years as regards development of youth is concerned, and that development of youth, I'm very proud to say, related to various parts of Jammu and Kashmir. So Sarang Gosavi is very well-known name as regards many parts of Jammu and Kashmir is concerned, and he's one of the leading youths who has followed his inner inspiration with passion and conviction and has been walking along on this path of serving the nation. ये सारी शुरुआत सारंग ने की 2002 में. So Sarang will be completed almost 20 years now, and Sarang is 43 years old. So Sarang, जब आपने ये शुरुआत की होगी तो you are hardly 22, 23. हम सब लोग जानना चाहेंगे कि इतनी कम उम्र में आपने ये नेशन को सर्विस के लिए ये जो पाथ चुना, ये कैसे चुना, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला। हम सब लोग, बहुत सारे लोग हैं, जिंदगी चली जाती है पर पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली क्या करना था ये जिंदगी के साथ, क्यों जिए थे, क्या पर्पस लेकर आए थे। आप तो बहुत ही कम उम्र में आपने ये सारी शुरुआत की। Sarang has been working extensively. He was inspired basically early in his life because of Lieutenant General V.G. Patankar, and thereafter his journey serving the nation through youth development, youth empowerment, conducting various educational and entrepreneurship programs for the youths of Jammu and Kashmir started. Sarang is well educated. He is basically mechanical engineer and MBA in HR. He's currently serving as an associate director. I'm very happy to tell all our participants that Sarang is not only in a social work, but as regards his professional background and career is concerned, he's currently working with one software company called Calsoft. He's working in a position as associate director, head of learning and development. During his professional career,
He has been recognized with multiple academic and professional awards, Best Management Award, Rising Star Award, Out of the Box Thinker Award. Right from 1997, he is involved in these social work programs. He was involved in various youth empowerment activities, earlier with Jnana Prabodhini, and thereafter he incorporated and started his own trust, own mission, named as Asim Foundation. I'm personally proud to be with Asim Foundation right from its incorporation in 2010. So it is almost 2010 to 2022. I know the journey of Asim Foundation. They started various entrepreneurship projects with youth in the border and handed over the successful projects to the local people. So various projects like Abhilasha, Exchange Tours, E-Friendship, he has done a great job. There have been n number of individual awards and recognition which Sarang has received throughout this particular journey. To name few, certain awards from Rotary, certain award from MIT University, PA Inamdar Socio Recognition Award, and many, many more. He has been a speaker at TEDx Pune, TEDx Vashi, Swayam Talks 2020, and so far has delivered 500 plus lectures as regards a topic that is problems faced by common people in border areas in India and abroad. So very well, great faculty we have today. Once again, Sarang, hearty welcome to you on this DSPPL social welfare forum, and we hand over to you. हम सारे लोग सुनने के लिए बेचैन हैं कि आपकी ये जर्नी कहाँ से शुरुआत हुई, ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिला, आप क्या कर रहे हो. Thank you. Over to you, Sarang. Thank you, Pranjal. And good evening to every one of you. Firstly, Pranjal is a very good speaker. He plans what to speak, how to speak. He has a great narration or oratory skills, and I don't have any. I have not jotted down points. Neither I'm going to tell you any philosophy because what I know is what I have lived, and I'm just going to narrate my story because I don't know if it really has any purpose, or I mean, that's all of you to decide, and you can let me know if I'm on the right path or otherwise. But I will be very open to you that the day I joined Jnana Prabodhini, a school, I started realizing that it's something which is much broader than what everyone is looking for. And then incidentally, I got to hear a session from one of my seniors, and he went to Kashmir and he came back and he was saying that it's very difficult, it's hard there. There's a lot of atrocities, or there are a lot of violence. I mean, all kind of soft stories. And somewhere I thought that this is the place which I think I can contribute to. But suddenly at 7th or 8th standard, you dream of everything you want to do in life, so you really don't know what to do. And sir, I'm sorry to interrupt. Just one small request to you. In order to benefit all the participants, मैं आपको थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा इंग्लिश और हिंदी थोड़ा सा मिक्स करके आप थोड़ा सा बात करें. Thank you. Sorry for it. मैं जम्मू कश्मीर में काम जरूर करता हूँ, लेकिन मेरी हिंदी बहुत बुरी है. It's mix of Marathi, so you'll probably आपको थोड़ा सा मुझे support करना पड़ेगा, but that's how Hindustani is, right? So instead of saying I am speaking in English or Hindi or Marathi, I'm going to speak in Hindustani, which is merger of all, and then it can connect to anyone in our country. तो मैं ऐसे स्कूल में कर रहा था, and suddenly when I completed my engineering, और तो मुझे प्राइज मिला था. मैं दूसरा था यूनिवर्सिटी में, और प्राइज देने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल वीजी पाटनकर सर आए थे, एंड उन्होंने पीठ पे हाथ रख के कहा कि आप जैसे बच्चों को कश्मीर आना चाहिए. एंड suddenly I realized that I was thinking and dreaming of Kashmir in my 8th, 9th, and then I had forgotten about it. But now this is an opportunity. मुझे अब जाना ही चाहिए. और मैं घर आ गया, और घर आके मैंने माँ को पूछा कि माँ, मुझे कश्मीर जाना है. एंड शी सेड आप पागल तो नहीं हुए, क्योंकि उसी साल कश्मीर के विधानसभा पे अटैक हुआ था, उसी साल लोकसभा पे अटैक हुआ था, और कश्मीर में तब लगभग 4000
मिलिटेंट जिंदा थे। व्हेन ऐसे 4000, तो जब 5 मिलिटेंट आ जाते हैं मुंबई में या टेररिस्ट आ जाते हैं मुंबई में, तो वी रियलाइज्ड हाउ महाराष्ट्र वाज। सो जस्ट इमेजिन 4000। तो ये ऑब्वियस था, माँ का ना ना कहना। और जब कोई ना कहता है तो उस उम्र में हमें करके दिखाने का जुनून और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वैसे ही मेरा भी जुनून बढ़ गया था कि बस अब तो मैं जाऊंगा ही कश्मीर। तो तब मैं टाटा टेक्नोलॉजीज में जॉब करता था और मैं वहाँ के एचआर के पास गया और उनको कहा कि मुझे 3 महीने की छुट्टी चाहिए। और वो हंसने लगे क्योंकि मैंने जस्ट ज्वाइन किया था। और उन्होंने कहा कि आप क्या करना चाहते हो इतना छुट्टी लेके, अभी तो आप 1 महीना भी नहीं हुए ज्वाइन किए। मैंने कहा नहीं, मुझे कश्मीर जाना है और मुझे वहाँ कुछ करके आना है। तो मैं 5 दिन के लिए जाऊंगा तो कुछ करके नहीं आ पाऊंगा, तो प्लीज गिव मी टाइम। तो वो सिर्फ हंसे और उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि हम आपकी छुट्टी सैंक्शन करेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैं 10 दिन के लिए जाके आता हूँ, फिर आई कम बैक टू यू आगे। और और घर में बताया कि मैं गोवा जा रहा हूँ। झूठ बोलना बुरा होता है, लेकिन मैंने बोला था। और मैं कश्मीर पहुंच गया। जब कश्मीर पहुंचा तो पहले आप झेलम से जम्मू पहुंचते हो और जम्मू में 2 बंकर्स होते हैं और गन आपके तरफ पॉइंट करके आप एंटर करते हो। तो एक पुणे के बंदे को गन देखना इटसेल्फ इज अ मतलब हॉरिबल फीलिंग एंड इट्स टेंस। और पूरी जो गड्डी गड्डी थी हमारी, उसमें लगभग 80% लोग आर्मी के थे और शायद ऐसे ही 10%, 15% हम जैसे सिविलियंस थे। तो मैंने वहां जाके उनको कहा कि मुझे जनरल पाटनकर सर से मिलना है, और उन्होंने कहा ऐसा कोई है नहीं यहाँ। एंड देन आई वाज एक्चुअली ब्रोकन। रोने लगा क्योंकि मुझे ये पता नहीं चला कि मैं एक नाम के भरोसे आया हूँ और अब यहाँ करना क्या है। एंड देन एक जवान आया और उसने कहा कि आप आगे जाइए ट्रांजिट कैंप पे, ट्रांजिट कैंप में जाके पता कीजिए। और फिर कैसे ना कैसे मैं श्रीनगर तक पहुंचा और श्रीनगर में पाटनकर साहब के सामने बैठ गया। और उन्होंने उन्होंने कहा कि हाँ बताओ सारंग, आप क्या करने आए हो यहाँ। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आपने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया हूँ। और फिर उन्होंने कहा नहीं, 21-22 साल की उम्र में आप जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं कर सकते। मैंने ऐसे ही कहा था आपको मोटिवेट करने के लिए, देश के लिए कुछ काम करो ऐसे, लेकिन आपको वापस जाना चाहिए क्योंकि ये ठीक जगह है नहीं। तो फिर मैंने कहा कि मैं सब छोड़ छाड़ के यहाँ आया हूँ, आप मुझे कुछ चैलेंज दीजिए। अगर वो चैलेंज में मैं फेल हो गया तो मैं वापस चला जाता। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, कुपवारा का एक रास्ता है जहाँ पे बहुत रोड माइन से, आप कम करके दिखा। तो आई थॉट इट्स इजी, मतलब इंजीनियर था, फ्रेश इंजीनियर, तो मुझे लगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डिजाइन करूंगा जिसमें मेटल डिटेक्टर होगा। अगर वो मेटल डिटेक्टर ठीक से वर्क कर गया तो कन्वॉय के सामने वाली गड्डी में वो रखेंगे और आई गेट दी एग्जैक्ट ये। तब मोबाइल वाज नॉट बैंड इन कश्मीर, सो इट वाज ऑल प्रेशर माइंस। एंड आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को प्रेशर माइन या रोड माइंस समझेंगे, अच्छा है नहीं समझा तो, बट दैट इज हाउ इट वाज। और फिर मुझे कहा गया, तो मैंने वो डिजाइन किया और मैं दूसरे दिन सुबह ही उनके पास गया और उनको कहा कि सर इट वाज इजी, ये सॉल्यूशन है। और उन्होंने मेरे वो देखा और मुझे कहा कि आपको क्या लगता है कि लास्ट 70 साल से मेरे जो इंजीनियर्स है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, इनको इतना सिंपल सॉल्यूशन नहीं मिलता होगा। तो दिस इज ऑफ नो यूज, बट आई लाइक योर पैशन, आई लाइक यू एज अ यंगस्टर। तो आई हैव अरेंज्ड अ टूर आपके लिए। मैंने गुलमर्ग की एक टूर अरेंज की है, आप वो गुलमर्ग जाओ और फिर वापस पुणे जाओ। और उन्होंने फिर एक जवान को कहा था कि कुछ भी करो, इस बंदे को ट्रेन में बिठाओ क्योंकि ये थोड़ा पागल लगता है। एंड देन दे सेंट मी बैक। और फिर मैं आके फिर से काम चालू किया और एक दिन पराड़कर साहब थे, वो एचआर के हेड थे, उनके पास गया और मैंने कहा कि सर अब तो मुझे 3 महीने की छुट्टी चाहिए ही चाहिए। और फिर उन्होंने कहा क्यों सर। और मैंने कहा कि एक चैलेंज मुझे दिया था और वो मैं ठीक तरीके से सॉल्व नहीं कर पाया, और अगर मैं वहां से भाग आया हूँ तो यहाँ पे भी आप मुझे जो काम दोगे वो मैं कभी कंप्लीट कर नहीं पाऊंगा। तो जब तक कि मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं आता, मुझे लगता है कि मैं कोई भी काम ठीक से कर नहीं पाऊंगा कहीं पे भी। तो मुझे जाके वो सॉल्व करना पड़ेगा और मुझे जाना ही चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको देता हूँ छुट्टी, आप चाहिए। और मैं फिर से कुपवारा गया, अ, कश्मीर में गया रादर। और कश्मीर में बटमालू नाम की एक जगह है, वहां से कुपवारा के लिए गाड़ियां निकलती है। तो मैं किसी भी गाड़ी में बैठ जाता था और जाते जाते गाड़ियों में लोगों से दोस्ती करके उनको उनसे बातचीत करता था। और कश्मीरी इंसान मतलब कश्मीरी मैन इज सो नाइस, हम्बल,
ह्यूमैनिटेरियन। मुझे कश्मीर में कभी ऐसा जगह नहीं, मतलब ऐसा कभी नहीं टाइम आया कि मुझे रहने के लिए घर, जबकि मैं किसी को नहीं जानता था। तो अगर मैं किसी गांव में चला जाता, उन बच्चों के साथ खेलता, तो वो कहते कि भैया आज हमारे साथ बैठो, और मैं बैठ जाता था। तो और फिर हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हुई ओवरऑल कुपवारा में। एंड देन आई रियलाइज कि एक द्रुगमुल नाम का छोटा सा विलेज है 6 किलोमीटर फ्रॉम कुपवारा। वहाँ पे एक स्कूल ठीक से नहीं चल रहा था, उसका नाम था अल फैयाज। जीआर शाह साहब थे, जिनके बेटे के नाम पे उन्होंने स्कूल किया था। बेटा बहुत जल्दी ही he had some health issues, और वो he died। तो फिर उन्होंने उसके नाम पे किया था, और लगभग 9 स्टूडेंट्स और 20 टीचर्स, ऐसा वो स्कूल का ओवरऑल तब का ये था काउंट। और फिर मुझे लगा ये मेरे लिए काम है। मुझे नहीं पता रोड में इसका क्या करूं, लेकिन ये स्कूल अगर मैंने ठीक किया तो एटलीस्ट आई हैव सम सेटिस्फैक्शन। और फिर मैंने उनको कहा कि क्या प्लीज आप ये स्कूल हाईवे के आजू बाजू करोगे, ताकि लोगों को आने में आसानी होगी। बाकी ये स्कूल यहाँ का सबसे नंबर 1 होगा, ये मेरी जिम्मेदारी। और शाह साहब ने मेरी तरफ देख के बोला कि बच्चे, मैं आप पे क्यों भरोसा करूं। और मैंने कहा कि एनीवेज आपका तो स्कूल बंद है, तो अगर हम दोनों कोशिश करके देखेंगे, अगर चला तो चला, लेकिन एटलीस्ट वी शुड गिव वन ट्राई। और उन्होंने कहा ठीक है, मैं घर बना रहा हूँ तो मैं आपको 3 कमरे दे देता हूँ। और फिर मैं वापस पुणे आके मैं वहाँ पे सब देखा था, तो यहाँ पे तब P1 P2 कॉमन हो गए थे कंप्यूटर्स के, वहाँ पे नहीं थे। तो मैंने अलग अलग कंपनीज में जाके वहाँ से कंप्यूटर्स लिए पुराने, उनको ठीक किया। तब मेरी सैलरी थी 12,000, P1 आता था, P1 P2 आते थे अराउंड 25,000। सो कंप्यूटर्स वर मोर इम्पोर्टेंट देन मी। तो जब मैं जाता था तो वो बर्थ पे कंप्यूटर्स रहते थे, मैं न्यूज़पेपर पे सो के जाता था, क्योंकि कंप्यूटर्स ठीक से पहुंचने चाहिए। मुझे थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो आई कैन इजीली, मतलब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे दिस वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट स्कूल इन कुपवारा विच हैड कंप्यूटर्स। और वो होता है ना कि इट्स अ डेस्टिनी, बट दैट्स बिकॉज दैट स्कूल वाज ऑन हाईवे। और तब मैंने जैसे कहा प्रेशर माइंड्स थे, तो सब बच्चे आने लगे, क्योंकि ये कंप्यूटर्स नया है कुछ, और वो देखने के लिए हमारे यहाँ 400 बच्चे 3 महीने में हमारे स्कूल में आ गए। और क्योंकि वो 400 बच्चे आने लगे, वहां पे एक भी रोड माइन नहीं था वो 9 किलोमीटर के पैच में। क्योंकि अगर वो रोड माइन के वजह से फर्स्ट कोई इंजोर होता, तो वो एक लोकल कश्मीरी होता, और एक लोकल कश्मीरी अगर इंजोर होता तो पूरा गांव के गांव उस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ चला जाता। इसलिए इवन द ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट अफोर्ड इट। नाउ डिड आई रियली, मैंने ये सोच के किया है तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं। ये सोच के नहीं किया था, लेकिन मुझे इतना मालूम था कि मुझे हाईवे पे कुछ करना है, इसलिए मैंने हाईवे पे स्कूल करने के लिए कहा था। बट आई नेवर थॉट कि ऐसा होगा। लेकिन 6 महीने में वहां पे एक भी रोड माइन नहीं था। एंड एंड ब्रिगेडियर ओम प्रकाश जी ने मुझे, आई मीन, getting caught in Kashmir is very bad, but I was caught in Kashmir, in Kupwara, and uh, फिर वो थोड़ा सा पूछताछ करने लगे, तो मैंने उनको कहा कि प्लीज आप जनरल पाटनकर साहब को कहिए कि सारंग हैज अ सॉल्यूशन नाउ। एंड आई वाज लकी कि ब्रिगेडियर सर spoke to जनरल पाटनकर, अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। एंड देन जनरल पाटनकर सर ने एक छोटा सा लेटर लिखा, थैंक यू सारंग, आई नीड लॉट ऑफ कंट्रीमैन लाइक यू। And a general writing a letter to a civilian of 23, I don't know वो बाकी लोगों के लिए क्या था, मेरे लिए it was, आज मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, पद्मश्री पद्म विभूषण सब अवार्ड्स मुझे मिल गए हैं। I have done what I wanted। और अब क्या, अब ठीक है, मतलब अब मैं फिर से वापस जाके काम कर सकता हूँ ऐसे लगा, और मैं वापस टाटा टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया। बट देन आई स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स, जहाँ पे मैंने कंप्यूटर सिखाना चालू किया था, जहाँ इन लोगों को सिखाया था। उन्होंने कहा कि सर ये तो इस यहाँ पे तो है, मेरा गांव यहाँ से 20 किलोमीटर पे है, वहाँ कंप्यूटर्स नहीं है, वहाँ क्यों नहीं पढ़ाते आप। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भेज देता हूँ। तो फिर मैं फिर से किसी कंपनी में जाता, कंप्यूटर लेता, वहां जाके बिठाता, 5 लोगों को साथ में लेके उनको सिखाता था। फिर दे बिकम ट्रेनर्स, तो ट्रेन द ट्रेनर्स जैसा हो जाता था, और फिर आई कम बैक। तो ऐसे 1.5 साल में वी हैड 13 कंप्यूटर सेंटर्स विथ, और पैसा कुछ भी इन्वेस्ट नहीं था एक्सेप्ट कि मैं जाने आना, बाकी सब लोग कश्मीरी लोग काम कर रहे थे।
फिर मैंने साइंस का वहां पे देखा तो साइंस कुछ लोग पढ़ नहीं रहे थे, तो मुझे लगा कि चलो साइंस के लिए कुछ करते हैं, तो वी स्टार्टेड साइंस क्लब्स, वी स्टार्टेड साइंस क्विज, दिस इज ऑल एक्सप्लोरेटरी। और ये करते वक्त या रादर आज भी मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि मुझे अल्टीमेट क्या करना है। मुझे लगता है कि if I started deciding about what to do, then I'll not be able to work for society. So the only thing which I have decided for myself is, और that is the purpose by which I work is, कि मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ और उन लोगों को हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि मैं अगर सारंग भैया को कुछ कहूँ तो I'll get an answer. And that's how we have been working. मतलब नागालैंड में हम कुछ काम कर रहे हैं, बोडो मिलिटेंट्स के साथ कुछ कर रहे हैं, पूंछ में कुछ कर रहे हैं, सांबा में कुछ कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि ये कॉमन है, हर जगह पे कुछ नया आता है और हम करते हैं, और वो करने की जो मतलब दो इनिशिएशन इज थ्रू अ कश्मीरी और थ्रू अ आसामी और थ्रू अ नागालैंड पर्सन देन थ्रू सारंग। एंड द ओनली थिंग व्हाट सारंग और व्हाट असीम नोज इज टू बी विद देम एंड ensuring that they trust you, और वो ट्रस्ट किसी का बिल्ड करना has become our purpose of life. So go there, just बातें करो उनके साथ, उनको ये भरोसा आना चाहिए कि सारंग भैया है, एंड देन वी बिल्ड सम सॉल्यूशंस। तो मैं पाथे स्टोरीज बताऊंगा और फिर मैं रुकता हूँ, मुझे मालूम है मैं अदरवाइज मैं रात भर बोलता रहूंगा। बट जैसे ये सब हो रहा था, कुछ ठीक चीजें, साइंस क्लब किया, फिर लास्ट ईयर जिसको पद्मश्री मिला जावेद का, तो जावेद इज माय ही 2003 में उनके घर पे मिलिटेंट्स ने अटैक किया, ही बिकेम पैराप्लेजिक। और फिर जावेद वाज अबाउट टू सुसाइड एंड ही सेड कि लकीली मैं उनसे मिला थ्रू यकजा नाम का एक ग्रुप है कश्मीरी पंडितों का, उनके थ्रू मैं उनको मिला। एंड मैंने जावेद को कहा मरेगा यार, खुद खुद करके देखते पहले। और देन ही सेड कि हाँ मुझे भी कुछ करना था लेकिन अब पता नहीं क्या करेंगे। और मैंने बोला चल कंप्यूटर सेंटर से ही चालू करते हैं, मुझे उतना ही आता है। एंड वी स्टार्टेड विद अ कंप्यूटर सेंटर। टुडे वी हैव अ डिसेबल्ड स्कूल इन बिजबिहारा आनंदनाग, which has 4,000 disabled who are getting supported, and it's all Javed who is doing it, not Sarang. तो फिर मैंने 2003 से 2007 तक जावेद के साथ काम किया, और 2007 को जावेद को कहा यू आर ऑन योर ओन, बिकॉज आप बड़े बन गए हो, नाउ यू आर अ लीडर, नाउ यू डोंट नीड सारंग। एंड ही सेड कि यार कुछ कुछ करके फिर जा, मतलब ठीक है तू जाना चाहता है तो कुछ करके जा। एंड देन वी अरेंज द पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप। और जब ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप हमने अनाउंस किया, तो मैंने महाराष्ट्र में आके लड़कियों को कहा कि आपको आके वहाँ पे सेशन लेना है। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट कि लड़कियां कश्मीर में जाके ऐसा सेशन करे, बट लकीली आई गॉट 17 ऑफ देम। और फिर मैं जब ये सब वहाँ पे तैयारियां हो रही थी, आई नेवर लेफ्ट माई जॉब, क्योंकि दैट इज आवर सोर्स ऑफ इनकम, वन ऑफ आवर सोर्स ऑफ इनकम, प्रांजल नोज इट वेरी वेल। तो मुझे घर पे फोन आने लगे थे धमकियों के, बिकॉज आई वॉज इन ऑफिस, तो मेरे पास तब मोबाइल नहीं था, तो मुझे ये पता ही नहीं था। बट एक दिन शाम को माँ को रोते हुए देखा, तो आई आस्क्ड हर कि क्या हुआ, और उन्होंने कहा कि सारंग कोई फोन कर रहा है और कह रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो वहाँ पे कश्मीर में, और अगर आप इस टाइम ऐसा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप करोगे तो जो भी लड़कियां यहाँ से जाएंगी उनका मुंडन करके और आपको मार के वो वापस भेजेंगे। ऑब्वियसली आई केयर फॉर माई लाइफ, मैं बहुत डरता भी हूँ। तो आई टोल्ड माई मॉम कि आप चिंता मत करो, अगर मुझे ऐसा लगा कि कुछ थोड़ा भी डेंजर है तो मैं ये नहीं करूंगा। और 1 जनवरी 2007 को ईद थी, तो ईद के दिन ईदी देते हैं बच्चों को, इट्स एन एडिशनल मनी। तो मैंने 1 जन 2007 को बिजबिहारा के मॉस्क पे एक लेटर लिख के रखा था सबके लिए कि आप मुझे 50 रुपए दो, क्योंकि मैं आपके बच्चों को रात के 2 से 4 पढ़ाता हूँ जब भी लाइट आ जाए। तो अगर हम जनरेटर खरीद सके तो इनका दिन का क्लास चालू हो जाएगा, तो प्लीज हेल्प मी विद 50 रुपीज एक्स्ट्रा। और 600 लोगों ने मिलके मुझे 37,500 रुपया दिया था, और हमारे पास जनरेटर आ गया था। नाउ ये पैसा और ये जनरेटर इज नॉट इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंट थिंग वाज कि आई वांटेड टू चेक कि आर वो टाउन मेरे साथ है कि नहीं है, और मुझे पता था कि अब है, 600 लोग मेरे साथ है। तो फिर मैंने उनको जाके बोला कि देखो मेरे घर कोई फोन कर रहा है, मुझे ये पता है कि ये कोई टेररिस्ट नहीं है ना ये मिलिटेंट है, क्योंकि अगर वो टेररिस्ट या मिलिटेंट होता तो वो मुझे मार देता, वो फोन नहीं करता। तो अगर वो फोन कर रहा है मतलब वो कोई गांव का बंदा है जिसको ये ठीक नहीं लग रहा है, या ही इज नॉट गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, तो यू टेल मी
what to do. अगर आप लोगों को लगता है कि ये गलत है तो मैं रुक जाऊंगा, मैं ये सेशन नहीं करूंगा। और फिर गांव वालों ने कहा कि आप पहले हम वी वर प्लानिंग टू डू इट इन अ हॉल, उन्होंने कहा अब ये हॉल में नहीं होगा, अब गार्डन में होगा, देखते हैं आपको कौन हाथ लगाता है। एंड 3 दिन हम गार्डन में ये कैंप किया एंड ऑल विलेजर्स वर स्टैंडिंग आउटसाइड। जब हमारा कैंप चल रहा था वो बाहर खड़े रहते थे कि भैया को कुछ नहीं होना चाहिए। एंड 3 दिन हमने किया और कुछ नहीं हुआ, और आज तक कुछ नहीं हुआ, विद द सेम बिलीफ एंड सेम ट्रस्ट। तो दिस इज हाउ इट। तो ना आई थिंक कि मैं क्यों काम करता हूँ, या तो एक तो 21-22 की उम्र में गाँव सुनने के लिए आता है। देयर इज अ लेटर ऑफ थैंक यू फ्रॉम अ जनरल। आप बैठते हो और आपको सुनने के लिए लोग होते हैं और वो कहते हैं कि भैया हमें लगता है कि कुछ करना चाहिए, ये प्रॉब्लम है, हम कर सकते हैं क्या? तो दे फील लाइक शेयरिंग अ प्रॉब्लम विथ मी मीन्स इट वाज गिविंग अ सेटिस्फैक्शन, इट वाज गिविंग अ मीनिंग। और जो रूटीन में मैं कैड कैम में काम करता था तब, उसके बाद एचआर में आज काम कर रहा हूँ, तो उससे कुछ अलग था। और एंड दैट इज समथिंग व्हिच ऑलवेज वर मोर चैलेंजिंग की। और फिर वो काम करता रहा और असीम की 2010 में स्थापना की। फिर 2010 को वी हैड नो मनी इन आवर अकाउंट फ्रैंकली, और 117 लोगों का दे डाइड इन कश्मीर बिकॉज ऑफ द टर्मोइल। और उसमें से 2 मेरे स्टूडेंट थे और मुझे बहुत बुरा लगा था कि ये मतलब ये क्या हो गया, मेरे स्टूडेंट कैसे इसमें शामिल हो गए। एंड देन आई हैड अ मीटिंग ऑफ ऑल बिजबिहारा स्टूडेंट्स, और मैं उनको बहुत डांट रहा था कि आपको मतलब दिमाग नहीं है आपको कि आप रास्ते पे जाओगे तो आपको गोली लगनी है। और फिर मैं जब गुस्सा होता हूँ तो मैं खाता नहीं हूँ, तो आशिक एंड ऑल दे न्यू इट, तो उन्होंने सेब लाए थे मेरे लिए। और उस वो सेब देते देते आशिक ने कहा कि भैया कुछ है नहीं करने को तो क्या करें, तो चले जाते हैं। और वहां पे मैंने कहा कि ठीक है, मैं सेब और अखरोट का एक कुकीज बनाना चाहता हूँ, एप्पल वॉलनट कुकीज, वुड यू ज्वाइन माई एंटरप्राइज? और सब 150 लोगों ने हाथ ऊपर कर दिए। अब मैंने सोचा तो था क्योंकि इट्स अ लोकल स्पेशलिटी, एप्पल लोकल स्पेशलिटी, वॉलनट्स और बेकरी, लेकिन ये कैसे करते हैं पता नहीं था। और फिर यहाँ आके मैंने मेरे जो वॉलंटियर्स हैं उन सबको कहा कि मैं तो बोल के आया हूँ वाह कि ऐसा हम कर रहे हैं, और हमारे पास ना पैसा है ना कुछ, कैसे करेंगे? तो दे सेड कि अब बोला है तो करेंगे। और फिर हम सब लोग जॉब करते थे, मैं परसिस्टेंट में था तब। तो मैं संतोष बेकरी में जाता था आपटे रोड के काम करने के लिए। तो मैं, अगर आप 2010-11 में वहां आए हो तो 6 से 8 शाम को यू वुड हैव सीन मी वर्किंग इन संतोष बेकरी। नीरूता कहीं और किसी और बेकरी में काम करते थे। हम सब लोगों ने अलग अलग बेकरियों में काम करके एक रेसिपी ढूंढी, और उसका रीजन ये था कि हमारे पास कंसल्टेंट को देने के लिए पैसे नहीं थे ना। कोई कंसल्टेंट आता तो भी सेब में वाटर कंटेंट होता है, वहाँ का टेम्परेचर अलग होता है, तो वी हैड टू बी एक्सपर्ट इन व्हाट वी डू, सो वी वांटेड टू लर्न इट। आज भी आई विल बी वेरी ओपन, एप्पल वॉलनट कुकी जो हम सोचते हैं और जो हमारा ड्रीम है उस क्वालिटी तक हम नहीं पहुंचे, बट इट इज स्टिल बेटर देन व्हाट इट वाज। और फिर हमने वो 12 जनवरी को फर्स्ट इनॉग्रेशन किया। एंड हमें ना पता ही नहीं चला कि ये इतना पॉपुलर कब हो गया, रेस्ट ऑफ इंडिया में नहीं, कश्मीर में, कि हमें हर जगह से फोन आने लगे। और हम सबको कह रहे थे कि यार हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास ओवन लेने का भी पैसा नहीं है। मतलब यू आर थिंकिंग कि एक एनजीओ का इमेज होता है कि बहुत पैसे वाला एनजीओ होता है, जिनके पास बहुत पैसे है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देता है। और हम लोग ऐसे थे कि हमारे पास हार्डली, आई थिंक 2011 में तो 50-60 हजार भी नहीं थे अकाउंट में। फिर 2012 में एक फोन आया था कि हम आपको इंदिरा यूथ क्रांति अवार्ड देना चाहते हैं। और मैंने उनको कहा था कि उसके साथ कुछ पैसा मिलता है, और उन्होंने कहा हाँ मिलता है, 1 लाख रुपीज मिलता है। तो मैंने बोला मुझे चाहिए अवार्ड, मतलब मैं जरूर लूंगा। फिर मुझे केशर सृष्टि से फोन आया कि हम आपका जो कनेक्ट है कश्मीर का वो बहुत है, एंड वी वुड लाइक टू अवार्ड यू विद केशर सृष्टि ये। तो मैंने कहा कुछ पैसा है उसके साथ? दे सेड यस। तो आई सेड कि हाँ मैं लूंगा। मतलब देयर वाज नो अदर मीनिंग टू अवार्ड फॉर मी बट अ मनी विथ इट, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच वाज गोइंग टू यूज, मतलब जो मैं करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे कुछ खड़ा करना था। एंड सो आई टुक दोस 2 अवार्ड्स इन 2012। फ्रैंकली ना मैंने इंदिरा के साथ कभी कुछ काम किया था, ना मैंने कभी संघ के साथ कुछ काम किया है कि मुझे केशव सृष्टि अवार्ड मिले, बट इट इज देयर विजन ऑल्सो कि कुछ कर रहा है अच्छा, एंड दे हैड टू स्टैंड विद बाय मी एंड दे स्टूड। और और मैंने वो लिए।
और फिर बांदीपुर से एक फोन आया एंड इट वाज ब्रिगेडियर नागपाल, और नागपाल जी ने कहा कि हे सारंग, आई वांट यू टू बी इन बांदीपुर. And I said, sir, I don't know, and I don't want to work with army in Kashmir. If I work with army, there's going to be a lot of threats because now we have developed a connect with civilians. And he said, no, there is a march against you, and it's a women who have come here. और सब लड़कियों ने यहाँ पे मार्च लेके आए, वो पोस्टर लेके आए. और मैंने कहा, और जब आप कश्मीर में काम करते हो ना तो बहुत ज्यादा ब्लेम्स आते हैं आप पे, एंड यू शुड एंजॉय देम. कुछ लोग कहेंगे आप आर्मी के एजेंट हो, कुछ लोग कहेंगे आप आईएसआई के हो, कुछ लोग कहेंगे आप संघ के हो, कुछ लोग कहेंगे आप मुस्लिम धार्जने हो, एंड सो ऑन. सो एवरीबॉडी ब्लेम्स. कोई आपके साथ कुछ नहीं होता है, हर एक का एक विजन होता है और एक व्यू पॉइंट होता है, तो एंजॉय दैट. तो फिर मुझे लगा कि कोई ऐसा ही मुझ पे ब्लेम आ गया है, और मैंने ब्रिगेडियर नागपाल सर को कहा कि सर, आई ट्रस्ट मी, आई हैव नॉट डन एनीथिंग. एंड ही सेड, नो नो, दे हैव कम हियर बिकॉज़ वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ युवाओं के साथ काम करते हो और लड़कियों के साथ कुछ काम नहीं करते जाते, और वो लड़कियां है जो कुछ करके दिखाना चाहती है. तो उन्होंने कहा है कि सारंग भैया को आपको बांदीपुर लेके आना चाहिए. और इट वाज इन अ प्लेस कॉल्ड अस्टिंगू. अस्टिंगू इज वेरी रिमोट, वुलर के सामने. और वहां पे इट वाज नेसेसिटी फ्रॉम द अदर पर्सपेक्टिव आल्सो. आर्मी आल्सो वांटेड ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मुझे थोड़ा डर है, बट ओके. सो वन मतलब दे आल्सो वांटेड टू गेट इन दैट विलेज, एंड सो आई थॉट कि लेट्स ट्राई. और फिर हमने अस्टिंगू का बेकरी चालू किया, और आज भी वो चालू है. वहाँ पे 6 लेडीज आर एम्पावर्ड एंड रनिंग ऑल वुमेन बेकरी इन कश्मीर वैली इन बांदीपुर. ये जितना आसान आपको लग रहा है उतना आसान है नहीं. इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ दोज लेडीज. वो लेडीज का करेज एंड द वे दे हैव फॉट ऑल द ऑड्स इज ऑसम. तो नीरा लीड्स इट, और वो नीरा इज द वन हु, नीरा रामदास, हु स्टार्टेड इट. और ऐसे फिर अभी फिर सांबा से फोन आया कि सारंग आप यहाँ आओ. ब्रिगेडियर रमन कॉल्ड मी एंड आई टोल्ड हिम आई एम नॉट कमिंग बिकॉज आई न्यू कि वो मुझे कुछ काम पे लगाएंगे. बट ही सेड कि मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ काम कर, आप बस आ जाओ. एंड देन आई वेंट देयर, और उन्होंने फिर मुझे घुमाया, और फिर पता चला कि वहाँ पे 600 मतलब 600 से ज्यादा वॉर विडोज है, युद्ध विधवा है. और और फिर उन्होंने कहा कि आप इनसे कुछ लोगों से बात तो करके आओ. और जब मैंने बातें की तो आई रियलाइज कि पेंशन इज नॉट इनफ, एंड एक टाइम मनी अवार्ड्स उनको मिलते रहते थे, लेकिन दे वांटेड कि कोई तो उनके साथ खड़ा रह के उनके बेटे जैसा उनके साथ एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट करे. एंड देन वी स्टार्टेड ऑलिव ग्रीन बेकरी व्हिच देन बिकम वेरी पॉपुलर आल्सो. आज भी आर्मियों के लोग, आर्मी में इट इज अ पॉपुलर बेकरी. और उसी टाइम मैं जब गांव में घूम रहा था तो आई सॉ 70-75 ईयर ओल्ड वेटरन्स कमिंग टू ECHS. ECHS के डॉक्टर उनको कह रहे थे कि आपको स्पेशलाइज्ड ओपिनियन की जरूरत है. फिर वो कहेंगे नहीं, उसके लिए तो दिल्ली जाना पड़ेगा, अब इस उम्र में कहाँ जाऊंगा, ठीक है छोड़ो, यहीं पे मैं ठीक हूँ. तो आई सेड कि नहीं नहीं, ऐसा ठीक नहीं है. आप हमारे जवानों जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. और फिर हमने 10 प्रिंटर लिए, प्रिंटर और स्कैनर, और अलग अलग जगह पे वहां पे जाके रख दिए, और कहा कि आप स्कैन करो, और आप जब स्कैन करोगे रिपोर्ट्स, तो मेरे पुणे और मुंबई के डॉक्टर्स विल हेल्प यू एंड गिव द सेकंड ओपिनियन. एंड दैट्स हाउ करंटली वी डू. 110 लोगों को पिछले साल हमने सेकंड ओपिनियन दिया. इट इज कंटिन्यूड प्रोसेस, और वो होता रहता है. ऐसे ही फिर पुंछ से फोन आया कि पुंछ इज, आपने अगर कश्मीर का मैप देखा है तो दिस इज उरी, दिस इज पुंछ. इसके बीच में हाजीनार है, जो इट्स लाइक यहाँ से सब मिलिटेंट एक्टिविटीज होती है, और यहाँ पे दोनों जगह फायरिंग होती है, और फिर यहाँ से वो अंदर आते हैं. तो पूंछ पे मैं जब गया था तो देयर वाज कर्नल जगत, और कर्नल जगत ने बोला कि सारंग ये देख, यहाँ पे लाइफ देख. मगनार नाम का विलेज था, एंड हमारा पड़ोसी इतना प्यारा है कि वो हमेशा शेलिंग, बॉम्बिंग, फायरिंग करता रहता है. तो आई थॉट, तो देयर इज नो रूटीन लाइफ उस एंटायर विलेज में, देयर इज नो रूटीन लाइफ एट ऑल. और उनको कभी बंकर में जाना पड़ता है, कभी घरों में रहना पड़ता है. तो ही सेड कि अब इनके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग. तो आई सेड कि सर इट्स वेरी, मतलब आई डोंट नो, लेट मी थिंक अबाउट इट. और फिर मैं आके यहाँ जब आया था तो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट लिज्जत पापड़ एंड द वे दे हैड वर्क. So I thought this is a good thing which I can copy and I should copy.
और फिर मैं सब वॉलंटियर्स के साथ बात कर रहा था, तो दे सेड कि यार वहाँ पे वी वर स्टडिंग और मगनार में वॉलनट्स अच्छे मिलते हैं, तो हम कैरामलाइजेशन ऑफ वॉलनट्स करेंगे, तो वो बंकर में हो या घर पे हो, किचन तो चलता है, चूल्हा जलता है, तो चूल्हे पे दे कैन कैरामलाइज वॉलनट्स, तो लेट्स कम अप विद अ प्रोडक्ट कॉल्ड कैरामलाइजेशन ऑफ वॉलनट्स एंड वी गॉट दिस प्रोडक्ट कॉल्ड कैरामलाइज वॉलनट्स। मैं खाता रहता हूँ इसलिए साथ में। तो दिस और आज 33 औरतें जिसको इससे बेनिफिट होता है, दे आर एम्प्लॉयड, दे आर वर्किंग विद अस इन मगनार। तो फिर बोडो मानस रिजर्व फॉरेस्ट से फोन आया कि वहां पे बोडोज वांट टू सरेंडर, उनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या। आई वेंट देयर, पता चला कि ये बंदे फॉरेस्ट में कहीं पे भी लेके जा सकते हैं आपको, जहाँ गाइड नहीं, मतलब कोई नहीं लेके जा सकता, बिकॉज दे हैव क्रॉस्ड इट मल्टीपल टाइम्स। तो आई सेड कि लेट्स गिव देम इंग्लिश का ट्रेनिंग, थोड़ा सा साइंटिफिक नेम्स, और इनको मानस रिजर्व फॉरेस्ट में गाइड बना सकते हैं। सो टुडे 25 ऑफ देम आर वर्किंग एज गाइड्स इन मानस रिजर्व फॉरेस्ट। फिर 5 लोग जो थे, जो वी डिडंट वांटेड देम टू, ओके, 5 लोग ऐसे थे जिनके लिए कुछ अलग सोचना पड़ा था, तो उनको फिर हमने उनको तमुल प्लेट्स बनाने का फैक्ट्री चालू करके दिया। नाउ दे आर कमिंग टू यूनिट, तमुल प्लेट्स बनाते हैं और तमुल प्लेट से आर गेटिंग सोल्ड, सो इट्स एन एनवायरमेंट फ्रेंडली स्टफ। पूरी में सो आई मीन आई कैन गो ऑन फ्रैंकली, हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ होता है तो हम रिएक्ट करते हैं, और मुझे लगता है कि अगर हम रिएक्ट की जगह रिस्पॉन्ड करने लगे तो थिंग्स चेंज। एंड आई विल जस्ट गिव वन एग्जांपल एंड आई स्टॉप एंड देन प्रोबब्ली वी कैन हम मुझे पता नहीं मेरे पास कितना समय है, इसलिए मैं रुकता हूँ, फिर हम फिर से डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन में स्टोरीज आ ही जाएंगी। बट उरी में 2017 में हमारे 17 जवान शहीद हुए, और उरी मतलब सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसा एक इमेज आज हमारे सबका, हम सबका बन गया है मूवी की वजह से। बट उरी मतलब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, उरी मतलब कुछ और उरी मतलब 1947 से आज तक एक भी बार भारतीय सेना या भारत के खिलाफ एक भी मार्च नहीं निकला हुआ एक जगह जो कश्मीर वैली में है। So they are the symbol of real national integration. They are the symbol of nationality, which none of us really उनके साथ कभी खड़े नहीं रहे, ना उनको हमने ये जताया कि हम आपकी इस वैल्यू का, इस चीज का रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब ये जवान शहीद हुए तो मुझे बहुत डर लगा कि अब, क्योंकि सिक्योरिटीज बहुत बढ़ती है, सिक्योरिटी, और फिर ये जो यहाँ के नौजवान है वो कभी कहीं गलती से आर्मी के बारे में या हमारे बारे में गलत ना सोचने लगे। तो हमें कुछ करना चाहिए ऐसे लगा, और मैं जल्दी से उरी पहुंच गया, और मैंने ब्रिगेडियर अहलावत सर थे, उनको जाके कहा कि सर सिक्योरिटी तो आपको बढ़ानी है, वो तो आप बढ़ाओगे। तो ही सेड नो डाउट अबाउट इट सर। तो आई सेड कि व्हाइल यू डू इट कैन आई डू समथिंग, एंड ही सेड व्हाट यू वांट टू डू। मैं क्रिकेट टूर्नामेंट करने वाला हूँ। तो कब पागल हो गया तू, क्यों, सिचुएशन क्या है, आप कर क्या रहे हो। और मैंने कहा कुछ नहीं, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि पीपल आर एंगेज्ड, यूथ आर एंगेज्ड, बिकॉज अदरवाइज थिंग्स विल बी वर्सन। तो ये सेड कि ट्राई कर, कोई नहीं आएगा, इतना माहौल गर्म है और इतना है। तो ऐसे ओके लेट मी ट्राई, और हम सबको लगा था कि 6-7 टीम्स आएंगी, और आई 54 टीम्स। और पूरा 1.5 महीना हमें क्रिकेट टूर्नामेंट करना पड़ा, और जब तब तक सर्जिकल स्ट्राइक भी हो चुका था, थिंग्स वर प्रीटी गेटिंग बैक टू नॉर्मल। सो आई वेंट टू ब्रिगेडियर अहलावत सर, और उनको कहा कि नाउ यू हैव टू होस्ट द फाइनलिस्ट, फाइनल तो आपके ग्राउंड पे होगा और आप लोग होस्ट करोगे। एंड ही सेड कि सर्टेनली वी विल। और जब हमने फाइनल होस्ट किया तो 6000 लोग आए थे वो मैच देखने के लिए, एंड देयर वर 2 टीम्स फाइटिंग, एंड आर्मी, द वे आर्मी होस्ट इट्स ऑसम, ठीक है। तो वो जो एक शायद दूरी हो जाती इन दोनों के बीच, वो फिर से एक बॉन्ड बन गया था, और उसके लिए कुछ बहुत अलग नहीं करना पड़ा था, बस एक क्रिकेट टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजेशन थी जो हुई, एंड इट जस्ट वर्कड आउट। फिर वहाँ पे केपीआईटी के साथ एक कंप्यूटर सेंटर, एक डेटा सेंटर हमने चालू किया। वहाँ पे एक बेकरी चालू की। द गर्ल हु वी ट्रेन्ड, शी गॉट सिलेक्टेड इन ताज श्रीनगर में वो काम कर रही थी, और 2 साल वहाँ काम करने के बाद उसने बोला कि नहीं सारंग भैया, मुझे वहाँ मजा नहीं आता, मुझे तो अपने फैमिली में रहना है। तो नाउ शी इज बैक, एंड शी इज ट्रेनिंग इन ऑल अदर, जहाँ पे हमने 9 अलग अलग बेकरी चालू किया, वहाँ पे वह महक जाके ट्रेन करती है। तो दिस इज हाउ इट हैज बीन फ्रैंकली। कहीं से भी फोन आया कि कुछ करो, तो मैंने मेरे वॉलंटियर्स को ये कहा है कि हम
लगभग 88 लोग हैं, तो कहीं से भी फोन आया तो वी शुड नेवर से नो। स्टैक लगाओ, जाके देखते हैं क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेट अस से सॉरी, let us be very open. On the first day, tell them कि we are not experts, we are not, but we will surely try and give that assurance to the person who's talking to you, who's expecting something from you. और उनके साथ खड़े रहो, और ऐसे हम खड़े रहते हैं, और जो भी नया आ जाता है तो कर लेते हैं। लेकिन ये सब करते वक्त एक लगा कि वी ऑल टॉक अबाउट आर्मी सो मच, और हर चीज आर्मी को ही करना है, हर चीज आर्मी नहीं करना है, ऐसा हमें लगता है। बट डू वी रियली नो एंड रिस्पेक्ट आर्मी फ्रॉम कोर ऑफ आवर हार्ट? आई थिंक नो। बहुत से लोगों को आज ये भी नहीं पता होता है कि कितने परमवीर चक्र विजेता है। 21 है। उसमें से कितने जिंदा है? 3 है। उन तीनों का नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, हमें नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि कितने लोगों को अशोक चक्र मिला है, 119, या वट। सो वी थॉट कि ये परमवीर चक्र विजेताओं का एक मेमोरियल बनना चाहिए। तो आज हमने भोर में ऐसा एक मेमोरियल बनाया जो कि सिविलियन ने इनिशिएट किया हुआ मेमोरियल है। और मुझे खुशी है कि मैं देवरूप के लोगों से बात कर रहा हूँ, तो देवरूप में भी एक परमवीर चक्र विजेताओं का मेमोरियल है, जो बर्वे, मिस्टर बर्वे और 2 लोग हमारे पास आए थे, उनको मैंने ऑडियो क्लिप्स दिए थे तब। मोडक सर, तुम्ही ते नक्की वापरलं पाहिजे असं ऐसा मैंने उनको कहा था, और वो दिया भी था। और एंड आई, तो वो हमने किया, लेकिन आई डिडंट वांटेड इट कि सिर्फ परमवीर चक्र विजेताओं का मेमोरियल। तो दैट इज लाइक कि अगेन वहां जाके म्यूजियम बनेंगे, सैल्यूट करेंगे लोग 2 मिनट के लिए, बट एट द सेम टाइम द वे आज हम देख रहे हैं समाज को, तो हर बंदा झगड़ने के लिए तैयार है। कोई किसी चीज को लेके, कोई किसी चीज को लेके, एवरीबडी वांट्स टू जस्ट, मतलब देयर आर ओनली डिफरेंसेस, आई डोंट सी रीजन व्हाई दे आर यूनाइटेड। सो आई थॉट ये 21 लोग ये रोल मॉडल्स होने चाहिए। लेकिन किस लिए? तो वी शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द डाइवर्सिटी, वी शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग डिफरेंट कल्चर्स, वी शुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या है। और इसलिए फिर वहां पे जहाँ पे ये मेमोरियल है, उसी के साथ में उनको हम रे ऑफ होप्स कहते हैं 21, और उसके साथ जो हर्ट्स बना रहे हैं हम, उस हर्ट्स में आसाम है, नागालैंड है, लद्दाख है, वहाँ के कल्चर की इंफॉर्मेशन है, वहाँ के एग्जीबिशन है, वहाँ के घर कैसे, उनके मॉडल्स है। तो द आइडिया इज आप जाओ और आप वो सब समझो कि दिस इज इंडिया। मतलब हम यूजुअली ऐसे कह रहे थे कि यार भारत में ना ऐसा है, अरे तूने भारत देखा ही नहीं है, गो टू मणिपुर, यू विल सी अ कंप्लीटली डिफरेंट इंडिया, इट्स ऑसम। नागालैंड में जाओ, कुछ अलग है। आप जीरो में जाओ, अरुणाचल में, आपको ऐसा दिखेगा कि पूरा गांव, शादी किसकी होती है? तो शादी गांव की होती है, शादी एक घर की नहीं होती है। तो मतलब जीरो मध्ये जब शादी होगी तो शादी के घर को सुबह ना ऐसे लाइन लगती है, बहुत पूरा गांव लाइन में आता है, और उनके पीछे राइस होता है, और वो जाके वो राइस देते हैं कि आप ये बनाओ आज, क्योंकि इतने लोग आएंगे तो खाना खुद का वो अपनी तरफ से, खुद का प्लस किसी और का। तो नाउ दिस इज हाउ डिफरेंट कल्चर्स, दिस इज हाउ आप हमारी कम्युनिटी से हमें सीख सकते हैं हम लोग, और इतना सीखने को मिलता है ना। तो ये मतलब व्हाई डू वी वर्क, और तो बहुत सीखने को मिलता है। ना जस्ट एवरी टाइम वी गो वी सी समथिंग न्यू। मतलब आप अरुणाचल में ही आप वॉलंग जाओ, तो वॉलंग का तो सब लोग देखते हुए, लेकिन वॉलंग में एक हेलमेट पॉइंट है, वहां पे 1962 में 4 जवानों को छोड़ दिया था, उनके नाम आज भी पता नहीं है। और वन डाइड, उसका खून पी के दूसरे 3 लड़े, फिर वो दूसरा गया, फिर उसका, एंड दे स्टिल फॉट। और चारों को पता नहीं था कि उनका नाम होगा, किसी को पता, बट दे फॉट टिल द लास्ट बुलेट। सो दिस इज हाउ दे आर। और हम लोग है कि थोड़ा कुछ करके हमारा नाम होना चाहिए, हमारा ये होना चाहिए, दैट वी ऑल गेट इनटू अ रॉन्ग स्टफ। तो दिस इज हाउ इट हैज बीन, एंड वी, मैं सच बताऊं तो बहुत मजा आता है, और जब रात को सोते हैं तो वी आर वेरी, एक सुकून रहता है, और नया कुछ आने वाला है कल, ऐसा एक फीलिंग रहता है कि कल कोई और फोन करेगा। और मैं हमेशा मेरे आसिम के भाइयों को कहता हूँ या बहनों को कहता हूँ कि whenever you sleep, last 5 minutes you should think कि अगर मैं मर गया तो पहले 5 रोने वाले कौन होंगे। और उसमें अगर मुझे 3 कश्मीरियों का नाम नहीं आया उस लिस्ट में, तो देन आई हैव स्टिल नॉट अचीव्ड व्हाट आई वांट टू।
तो तब तक काम करना चाहिए जब तक कि वो पांचों नाम उन लोगों के नहीं आए जिनके लिए हम काम करते हैं, कि मुझे इतना मैंने काम किया होगा कि अगर मैं उसके साथ ना भी हूँ तो भी वो सोचेगा कि मैं हूँ या हमारा कनेक्ट है और उसको रोना आएगा, एंड दैट इज व्हाट इज हेल्पिंग मी गो। आई थिंक प्रांजल मैं रुकता हूँ, आई डोंट नो, मैंने कभी कुछ सोचा नहीं था, दिल से बोला बिकॉज आई थॉट दैट इज इजी एंड दैट इज हाउ। सारंग, आपने काम ही इतना किया है तो इसलिए सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें स्पीच तैयार करनी पड़ती है क्योंकि हमने किया नहीं है कुछ। आपने काम इतना किया है तो इसके लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। अद्भुत, अलौकिक। यस सर। Thank you, Sarang Goswami. Goswami, right? And thank you so much. I mean, I feel proud. आज ये हमारा जो ये मंच है, सोशल एम्पावरमेंट फोरम, I think it is charged in a different way altogether. So salute to you. और आपने जो कश्मीर की बातें बताई, तो आई एम नॉट सो मच एक्वेंटेड टू कश्मीर, खाली 2 बार जाने का मौका मिला। 2003 में अमरनाथ यात्रा में गए थे तो कश्मीर रहे थे, 2012-13 में वापस गए थे, बट 1985 में I had returned to the Ministry of Home, the Central, 1985, when I was working that time, and I felt something for Kashmir. तो मुझे हमेशा लगता था कि कश्मीर में लोगों को अर्निंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है। See, as you rightly pointed out, and you did a lot of work, Sarang, on that, कि उनको कोई एम्प्लॉयमेंट मिले, उनके दिमाग को कोई दिशा मिले, नहीं, उनको मन को कुछ काम मिले, कभी एंगेज रहे। So I suggested one scheme, which I don't know how laughable it could be or how practical it could be. मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा था कि द फ्रंट बॉर्डर जो है अपनी कश्मीर की, डिक्लेयर एज अ फ्री इकोनॉमिक जोन, डिक्लेयर इट एज अ टेक्नोलॉजी पार्क, allow the other people from other countries, the big companies, to come, because for the information industry, the Kashmir climate is quite suitable for them. Again, information industry, the IT industry does not create a pollution or that kind of thing, in terms of chemical pollution. So आप free करना उनको, give them on a long lease, maybe 99 years lease. So when all these companies from developed countries come to India and base themselves at Kashmir, that will create a lot of employment for the local Kashmiris. एक अच्छी development होगी. And secondly, that will be some kind of defense front for us, against the Pakistan. Because in Pakistan, even if they attack on the borders, the first thing they will have to go through these front of maybe German companies or the American companies. So we are using these countries, against our dear neighbor. So somewhere I thought, and unfortunately that was never taken seriously. Then I realized that probably the political will nahi hai ye problem ko solve karne ka. As you rightly said, everything has to be managed by military. Everything has to be managed. And somewhere I think the politicians were enjoying this crisis of Kashmir. That became some kind of a staple diet for their existence. When I went for the first time to Amarnath in 2003, तो मुझे एक पता चला कि जब पिट्ठू होते हैं ना वहाँ पे, जो कश्मीरी लोकल लोग होते हैं, they help you to carry the luggage, carry the bags. And we started something novel. Probably Pranjal must have told you कि हम सब रेकी साधक हैं, है ना? And Reiki is a wonderful way of approaching the life, a spiritual aspect of life. तो हम वहाँ से बहुत सारे भंडारे होते हैं, शायद यू आर अवेयर अबाउट इट। फूड के भंडारे होते हैं, महाराष्ट्रियन फूड होगा, गुजराती फूड होगा, पंजाबी फूड होगा। So there were a lot of food people. So we thought we should not give them food, we should give them Reiki. क्योंकि लोग थकते हैं, यहाँ से जाते हैं ना, कोई भी इतनी आदत नहीं होती कि इतना लंबा चल उठा के लेके जाते हैं। They were so tired by the time, because उनका तो बेचारे का यही काम रहता था पूरा दिन, और वो कहते थे कि हमें यही सीजन में जो अमरनाथ की यात्रा रहती है, वही सीजन में कुछ अर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। So they used to work overtime. We used to give them Reiki, and somewhere I saw that they started crying. बोलते थे कि हमारी माँ की याद आ रही है ये स्पर्श देखकर। So somewhere we already broke the boundaries. I thought, because they were humans first. So कहीं पे पता चलता था तो उनको बात करे तो पता चलता कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है, कोई काम नहीं है हमारे पास, nobody is providing us work. So what you have done is actually, somewhere I find fulfillment of my dream, which I could only dream, but you could put into reality. A lot of people have narration in their life, but you have a narrative in their life. We are good narrators, but you have a narrative, and when the narrative is there, I think that becomes your mission. So somewhere hats off to you, Sarang, and thank you so much for coming and inspiring us.
जैसा एक कोई मूवी देख रहा था ऐसा मुझे लग रहा था आपकी सारी. I was with you whenever you used to share, because I had seen some small shanties there in Kashmir valleys and some villages we could visit, so I could visualize what was happening. And you have done such a massive work that I think आज हमारा जो मंच है वो धन्य हो गया, honestly, and in such a small age you have done it so much, Sarang, and thank you so much. And I am sure that ये बहुत सारे लोगों को inspiration मिला होगा. See, to hate is very easy. No, जैसे Dale Carnegie used to say, to criticize, condemn, and complain, is very easy. Any fool can do. So I think we should go beyond that, criticizing, complaining, and condemning people, and doing something very, very विधायक जो कहते हैं, constructive work. So we have a trust, and Modak Kaka was also the one who you referred to. Is our trustee, and I'm very proud to say that he has started that center there, and we are also putting our might behind that. So कहीं पे हम लोग आपके काम आए हैं ऐसे काम के लिए, तो नाम भी बड़ा अच्छा है, असीम है, तो सीमा तक, क्योंकि भारत केवल मेरे ख्याल से जो वैरायटी है केवल गांव में नहीं होती. गांधी जी ने कहा कि विलेज में, बट मैं मानता हूँ कि बॉर्डर्स पे भारत ज्यादा दिखाई देता है. दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द इंडिया. द होल वर्ल्ड नोज फ्रॉम द बॉर्डर्स दैट वी हैव. लाइक मणिपुर की आप बात की, बोडोस की बात की, असम की बात की, एंड कश्मीर की बात की. आई थिंक यू आर डूइंग अ वेरी वेरी नोबल वर्क. ना मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि आपने शुरुआत में कहा कि आपकी माँ का विरोध था. हाउ डिड यू मैनेज द मदर देयर आफ्टर? इतना सारा काम आपने किया, एंड व्हाट वाज हर इंप्रेशन, व्हाट वाज हर रिएक्शन और रिस्पांस टू दैट? वुड लाइक टू नो. आज भी उसको थोड़ा सा डर लगता है, माँ है फाइनली, तो क्योंकि कभी कुछ हो जाए, कभी ना कभी कोई फोन आता है. आज तो आर्मी इज ट्रस्टिंग अस सो मच कि जो भोर का इनॉग्रेशन किया उसमें नरवणे सराय, नाउ दैट बिकम्स अ न्यूज इन कश्मीर. असीम के प्रोग्राम में आर्मी चीफ जाते हैं तो then it becomes an army NGO kind, ऐसा सोचने लगते हैं. तो आज भी उसको डर लगता है. लेकिन 2008 में जब वहाँ my mom also went to अमरनाथ यात्रा, एंड वो कभी मेरे साथ नहीं जाना चाहती थी, और उसने कहा था कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं अपना अपना जाऊंगी किसी टूर्स और ट्रेवल्स के साथ, बिकॉज शी नेवर वांटेड टू द वे आई वर्क, और जिनके लिए मैं जिस तरीके से काम करता हूँ, तो शी नेवर वांटेड कि शी बी अ पार्ट ऑफ इट और समथिंग. बट जब 2008 में वो गई थी तो 5 ब्लास्ट हुए थे व्हेन शी वाज देयर, एंड नोबडी वाज एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. तो मैंने तब एक आर्मी यूनिट को मैसेज किया था कि मेरी माँ वहाँ पे, आई थिंक शी वुड बी समवेयर नियर पहलगाम, दैट्स हर नेम, आई वांट टू टॉक टू हर. तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा. फिर मैंने यासीन मलिक को फोन किया था कि यासीन मलिक साहब, हमारी दुश्मनी तो प्यारी है, लेकिन माँ है वहाँ पे, माँ से बात करनी है, माँ से बात करवाओ. और तीसरा, जो मेरे बिजबिहारा के सब स्टूडेंट्स थे, उनको कहा था कि माँ से बात करनी है, माँ से बात करवाओ. एंड पहलगाम में उसी दिन रात को 2 बजे से पहले तीनों लोग पहुंचे गए थे, और तीनों एक साथ खड़े थे. मतलब इट वाजंट यासीन मलिक, इट वाज यासीन मलिक्स रिप्रेजेंटेटिव. मेरे बिजबिहारा के 2 लोग थे, आर्मी का एक यूनिट का जो 2 जवान थे, और उन्होंने सबको नीचे बुलाया और कहा कि वो सारंग गोसाई इज, हु इज सारंग गोसाई's mom. And my mom thought कि there is something कुछ मतलब ये बहुत खतरनाक कुछ होगा उसके साथ. बट देन दे सेड कि आप प्लीज हमारे हॉटलाइन पे आपके बेटे से बात करो, क्योंकि उसको वहाँ पे आपकी याद आ रही है. एंड ऑल 3 वर देयर. दे इंश्योर्ड कि वो वहाँ तक पहुंचे, मुझ तक वो पैगाम आ जाए. तो देन शी रियलाइज कि वी हैव अ गुड कनेक्ट, एंड शी सॉ ऑल 3. पहले यूनिट पहुंचा, उसके बाद थोड़ी देर में यासीन मलिक पहुंचा, उसके बाद एक आम आदमी पहुंचा. तो शी सेड कि आई थॉट आई वाज इनटू अ फिल्म जहाँ पे कोई ऐसे एक हीरो का ये हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. देयर आफ्टर शी सेड कि आई नाउ नो दैट यू विल बी सेफ, बट स्टिल शी हैज दैट फियर. लेकिन उसके बाद शी स्टॉप्ड, मतलब विरोध करना तो कम हुआ. लेकिन फाइनली ना एक बहुत बार बहुत निगेटिविटी आ जाती है, या फिर आप कुछ करते हो, कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि यू फील कि यार मैं इनके लिए कर रहा हूँ और ये ऐसे कैसे हो गया. एंड देन यू हैव नो वन जिसके साथ आप शेयर कर सको, या फिर आपको यू फील सो लोनली. जैसे मैंने 2003 में पहले 10 कंप्यूटर्स दिए थे कहीं कहीं से मिला के, और उस बंदे को लगा कि इट्स एन इजी मनी, उसने बेच दिए. और मैं वापस आके घर में 3 दिन एक कमरे में क्लोज होके रो रहा था कि मुझे पहचान कैसे नहीं हुई उस आदमी की, मैं पहचान नहीं पाया. तो एक गलती मेरी है. एंड
मतलब कंप्यूटर्स तो ठीक है, वो फिर से मैं खड़ा कर दूंगा। एक तो लोगों का भरोसा था जो मुझसे उठने वाला था, बिकॉज आई लॉस्ट देयर मनी, देयर कंप्यूटर्स, एंड सेकंड इज कि आई हैव लॉस्ट, मतलब आई कुडंट रिकॉग्नाइज ह्यूमन। तो मुझे बहुत बुरा लगा था, और तब जिसके कंधे पे या जिसके साथ जाके रो सकता था वो माँ थी। आज भी जब भी मुझे लगता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आजकल हमारा है कि वी हैव नो मनी इन अकाउंट एंड वी हैव सो मेनी कमिटमेंट्स टू फुलफिल। वो कैसे करेंगे आई डोंट नो, बट बचपन से ये रहा है कि हम अच्छा काम करते रहेंगे, लोग अपने आप जुड़ जाते हैं साथ में, तो इट विल हैपन। एंड तो प्रांजल शायद हमें हमेशा एक स्टूपिड ऑर्गेनाइजेशन कहता होगा, क्योंकि भी मतलब हम अननेसेसरी इतना ले रहे हैं, और हर एक बंदा कोई बोलता है हम हाँ बोल रहे हैं और काम करते ही जा रहे हैं, एंड वी हैवंट प्लान्ड 10 साल के बाद क्या, 5 साल के बाद क्या, कॉर्पस कैसे होना चाहिए, आता नहीं है। तो एवरी टाइम सो देयर इज लॉट ऑफ, बहुत बार बहुत ज्यादा मालूम नहीं है कि कल क्या होगा, और इतने लोगों का भरोसा मैं सह पाऊंगा या उनके साथ खड़ा रह पाऊंगा कि नहीं। तो दैट टाइम इट्स ओनली मॉम, जिसके पास मतलब माँ के पास जाओ, speak out, and she takes all the tension, and then you are free to again wonder and मतलब जाके नया कुछ चालू करके आने के लिए। So I didn't manage her, she is managing me well. Thank You you, can't Sarang. Thank you manage for your sharing mom. all that. As a unit head of an institution called Reiki Vidya Niketan, I'd like to make a small offer. कि आपके जितने आपके ASEAN Foundation के अंदर, I would like to train as many people in Reiki, because that will be really what you are actually doing what we are doing. And this Reiki is not what military people or the militants do. But this is something which will create a lot of transformation possibilities in Kashmir. And मैं यही कहना चाहता हूँ कि ASEAN Foundation के टाइटल पे हम लोग करेंगे, and the entire income can go to the ASEAN Foundation. You know, because I have a novel idea. Let us create goodness, and let us whatever that revenue we collect should go for the good work. तो अगर ASEAN Foundation के साथ आप हमें काम करना देंगे, with Reiki Vidya Niketan, will make all our seminars free for ASEAN Foundation, and they can charge, and we can create some kind of funds. You know, so Pranjal ji आपको अच्छी तरह से बताएंगे उसके बारे में. That's what immediately I can offer, because we would like to contribute to good work. You know, that is the spirit we are carrying. Huh? So thank you very And much. I have one request, one more request, if it's okay. कि ना हम लोग बेकरीज तो कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, मतलब इतने अच्छे नहीं भी होंगे, ठीक ही है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आई डोंट वांट कि वो ना वॉलमार्ट में जाके मैं खड़ा रखूँ या फिर बिग बाजार में, मतलब देयर आर लॉट ऑफ ऑफर्स व्हिच आर कमिंग, बट वी मतलब before you say anything, Sarang, we have a community of sadhaks, and we are almost 40,000 community, 40,000 strong community. We would like to help us you to distribute this products, you know, bakery products. Our sadhaks should definitely help, you know, on a voluntary basis. जैसे अगर आप 2 कुकीज के पैक्स अगर पर मंथ 1 साल के लिए हमारे साथ ले लो, so that would be बिल्कुल Sarang, I think we love cookies and would like to distribute it, and definitely we'll shake hands on that. And thank you very much, and anything that we can do for your noble work, we are always there. Jai Hind. Thank you, sir. नहीं, आज मैं एक जर्नलिस्ट का वीडियो देख रहा था, उसने एक टाइटल बड़ा मजेदार था, इसलिए मैंने देखा। उसने क्या कि मोदी जी की जो यशोगाथा है ना आज तक की, वो गलतियों के ऊपर खड़ी है। I was a little amused with that, and finally he says in that कि मोदी जी गलती करने को डरते नहीं, क्योंकि वो he takes the risk and does a good job. The good people are not taking enough risk for their good work. And actually गलती करने को जो डरता नहीं ना, बहुत काम करता है। नहीं तो आपने जिस एरियाज में जाके नए एक्सप्लोरेशंस की, you know, I think that is what ultimately will lead to success. You know, people are afraid of taking risk. You know, I think the good people should also take a risk for the good work. You know? So somewhere I think we also need to learn from terrorists and the militants, something to learn from. You know, they are committed, they are passionate, they are patient, they are perseverance. Always tell people perseverance, patience, and passion. ये तीन वो लोग दिखा रहे हैं, हम लोग नहीं दिखा रहे. And I saw all these three in what you said today. So thank you very much, and we had really enjoyed your lecture. And देखते हैं कि वापस कभी ना कभी अपन को नया रंग में. नहीं सर, मैं वही बोलने वाला था कि आई न्यू दैट कि सारंग का सेशन, मतलब सारंग का ये जो है वो एक सेशन में कंप्लीट हो सकता, बिकॉज देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट आई आल्सो नीड टू आस्क एंड सो मेनी आवर पार्टिसिपेंट्स आल्सो नीड टू आस्क. तो आपसे परमिशन लेके एक बार 15 दिन बिल्कुल
और तब और हो क्वेश्चन सके तो- आंसर सेशन रखेंगे। हो सके तो सारंग जी को अपने स्टूडेंट बनाने के लिए मेरे पास बहुत दिलचस्पी होगी। Be proud of you. Then I can say my student is doing so many things. I always love my students. So thank you very much, Sarang. And So Thank you Sarang, so thank much. you, thank you very much. thanks and Yeah. So thank you. Good luck to your work. Thank you Sarang, so thank much. you very much for a very inspiring session and the great work that you have been doing. Hats off to your work, to all your coordinators. बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ because of the असीम फाउंडेशन वर्क। पर जैसे मैंने कहा, दोबारा आपको रिक्वेस्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बाकी है, ज्यादा किसी ने पूछा ही नहीं क्वेश्चन, और मुझे पता था वो एक सेशन में नहीं होगा। पर पहले मैं अगर आपको बोलता कि 2 सेशन बुलाने वाले, तो मैं डर गया कि आप अवेलेबल होंगे या नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन और आंसर सेशन के लिए दोबारा आपको रिक्वेस्ट करेंगे। आज यही रुकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, Thank you. थैंक यू, Thank you. Thank you, everyone. thank you to all the participants for joining. We'll be connecting again through this social empowerment forum. Thank you. आज की मीटिंग यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।